ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ خود کو ارحم شاہ سے بچانے کے لیے بالکنی میں کود گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے نیچے سوئمنگ پول تھا۔ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی، اسی لیے پانی میں جھٹپٹانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانس توڑتی، ارحم شاہ اسے باہر نکال چکا تھا۔ وہ بھیگی اس کی پناہوں میں آنکھیں میچے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ارحم شاہ کی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں بھینچے جب وہ اس کے سراپے سے نظریں چراتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ تمہارے مرنے کی کوشش ناکام ہو گئی، اب میں تمہیں ماروں گا میری جان، تڑپا تڑپا کر۔ سرد لہجے پر وہ ہوش میں رہتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر اسے معلوم ہوتا وہ معمولی ملازم جس سے وہ دشمنی کر رہی ہے وہ ارحم شاہ ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی، پر اب تو وہ اس کے نکاح میں وہ اپنے خاندان کی سب سے بگڑی ہوئی اور لاڈلی اولاد تھی۔ ایک بار جو لفظ اس کے منہ سے نکل گیا پھر اسے ہر حال میں وہی چاہیے تھا، اور یہ ساری ضد اس کو اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ احمد شاہ بھی ایسے ہی تھے، اپنی دھن کے پکے۔ آج اس نے ضد کی تھی کہ وہ خود ہی ڈرائیو کر کے یونیورسٹی جائے گی۔ احمد شاہ زمینوں پر گئے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے وہ گھر میں اپنی ماں کا جینا حرام کیے ہوئے تھی۔ زہرا بیگم اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور دوسری طرف بیٹی کی ان حرکتوں سے پریشان تھی۔ اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈرائیونگ سیکھی تھی، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے انہیں اس بات سے خوف آتا تھا کہ کہیں وہ جلد بازی میں کوئی ایکسیڈنٹ کر کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھے، اور پھر احمد شاہ بھی انہی سے ناراض ہوں کہ انہوں نے بیٹی کو گاڑی کیوں لے جانے دی۔ لیکن وہ ملائکہ شاہ تھی، اپنی ضد کی پکی۔ وہ نئی گاڑی لے کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ راستے میں ٹریفک سگنل پر اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو پسینے میں شرابور سامان اٹھائے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ بیچارہ کتنا ہینڈسم ہے، لیکن افسوس کہ کتنا غریب ہے، کسی کے گھر میں ملازمت کر رہا ہے۔ اس نے اس نوجوان کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا تھا، لیکن سامان سارا شگن کا تھا اور اسی وجہ سے اس کی توجہ اس نوجوان کی طرف ہوئی تھی۔ سگنل گرین ہوتے ہی وہ اپنی گاڑی کو نکال کر لے گئی۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹی تو ایک نئی گاڑی کھڑی دیکھ کر یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی کہ کون آیا ہوگا۔ وہ اپنی ہی دھن میں تیزی سے چلی جا رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ سامنے سے آتے شخص سے ہوا، اور ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے وہ بری طرح سے سلپ ہوتی زمین بوس ہونے ہی والی تھی کہ سامنے موجود شخص نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا اور کھڑا کر دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کی باہوں میں کھڑی تھی اور دونوں کے چہرے اتنے نزدیک تھے کہ اسے اپنے چہرے پر اس کی سانسوں کی گرماہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ہی اس کا دھیان اس شخص پر گیا اور اس نے غصے سے اس شخص کو تھپڑ دے مارا۔ یو بلڈی فول، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ میری اتنی مہنگی ہیل کی سٹرپ ٹوٹ گئی تمہاری وجہ سے۔ غریب ملازم، تمہاری یہ جرت کہ تم نے مجھے چھوا۔ کس کے ساتھ آئے ہو تم؟ یہاں رکو، ابھی تمہیں تمہاری نوکری سے نکلواتی ہوں۔ ملائکہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ تبھی باہر کھڑے ہوئے اس شخص نے فوراً ایک کال ملائی اور کسی سے کچھ ضروری بات کر کے فوراً کال بند کر دی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا جہاں پر اس کی مطلوبہ گاڑی پہنچ چکی تھی۔ ملائکہ ہلکا ہلکا لنگڑاتے ہوئے جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو زہرا شاہ گھبرا کر اٹھی اور بھاگ کر بیٹی کو پکڑ لیا۔ کیا ہوا بیبی؟ منع کیا تھا نا کہ گاڑی خود مت لے کر جاؤ، کچھ کر لیا ہے کیا؟ زیادہ تو نہیں لگی، دکھاؤ مجھے۔ ملائکہ شاہ غصے سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سامنے بیٹھی خاتون پر پڑی جو چہرے میں بالکل اس کی ماما جیسی لگ رہی تھی۔ ملائکہ نے اپنی ماں کا بازو ہلا کر ان سے اشارے سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ تبھی زہرا شاہ نے خوشی سے لبریز آواز میں اسے بتایا کہ یہ تمہاری بڑی خالہ ہیں۔
ये 30 साल पहले लंदन चली गई थी और दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आई। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान लौटी हैं और हमसे मिलने पहुंच गई। मलाइका ने ज़ोहरा शाह की आवाज में छुपे हुए दुख को महसूस नहीं किया और अपनी खाला की तरफ बढ़ी, जो बाजू फैलाकर खड़ी थी। मलाइका को उनसे गले लगाकर अच्छा महसूस हुआ। अतिया शाह ने मुस्कुराकर भांजी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए छोटी बहन से कहा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है तुम्हारी गुड़िया, माशाअल्लाह। और मलाइका अपनी तारीफ पर शर्मा सी गई। ज़ोहरा शाह बहुत अरसे बाद इतना बोल रही थी कि मलाइका हैरत से उन्हें बोलता देख रही थी। दोनों बहनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। रात का खाना खाकर मलाइका तो जल्दी से अपने रूम में चली गई। खाला से मिलने के बाद उसे ये याद ही नहीं रहा कि बाहर गेट पर मिलने वाले अजनबी के बारे में खाला से कुछ पूछे। बिस्तर पर लेटकर जैसे ही उसे उसका चेहरा याद आया, न जाने क्यों उसे कुछ घबराहट सी महसूस हुई थी। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई थी। उसकी गहरी सुरमई आंखें उसको बेतहाशा याद आईं। उसे अचानक महसूस होने लगा जैसे कोई उसे गौर से देख रहा हो। उसे उन नजरों की तपिश अब तक अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने लाहौला पढ़कर इधर उधर देखा और फिर हैरत से सोचने लगी कि मैं उस मुलाजिम के बारे में क्यों सोच रही हूं, और फिर अपने टेडी बियर को गले लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। अगले रोज सुबह सुबह ही उसे बाबा के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी तो वो फौरन ही उठकर बैठ गई। अक्सर बाबा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते थे और उसकी मामा को बिला वजह डांट कर रख देते थे। मलाइका को बाबा का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं था और वो फौरन अपनी माँ की साइड लेकर बाबा को खामोश करवा देती थी, क्योंकि बाबा का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी तेज बोलने से बढ़ जाता था। वो अपने नाइट ड्रेस में ही बिस्तर से उठकर बाहर भागी। उसकी खाला और माँ सर झुकाए बैठी थी और बाबा गुस्से में न जाने क्या कुछ कह रहे थे। खून, खानदान, पहचान और न जाने कुछ अजीबो गरीब अल्फाज। मलाइका ने चुभती हुई नजरों से मुलाजमों की तरफ देखा जो हाथ बांधे किचन के दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही मलाइका ने उनकी तरफ घूर कर देखा, वो जल्दी से किचन के अंदर चले गए। मलाइका ने आगे बढ़ते ही अपने बाबा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रिलैक्स होने को कहा। अहमद शाह बेटी की तरफ देखते ही खामोश से हो गए। मलाइका को ऐसा महसूस हुआ यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा संजीदा बात हो रही थी। मामा अपने आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ चली गई थी और खाला भी जल्दी से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। उसने अपने बाबा को ठंडा पानी पीने के लिए दिया और फिर उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया और बहुत प्यार से पूछा, बाबा क्या हो गया है आपको? इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, और आप मामा को पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं मुलाजमों के सामने। प्लीज अगर कोई बात हुआ करे तो उन्हें कमरे में जाकर कहा करे, ऐसे मत किया करे ना बाबा। मलाइका ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाते हुए कहा तो अहमद शाह ने बेटी के सर पर बोसा देते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर ही दफन कर लिया। वो उन्हें क्या बताते कि बरसों से वो किस तकलीफ का सामना कर रहे थे और आज वही तकलीफ दोबारा से ताज़ा हो गई थी। थोड़ी ही देर में नाश्ता टेबल पर लग चुका था। ज़ोहरा शाह अभी बहन को बुलाने के लिए गेस्ट रूम की तरफ जा ही रही थी कि अतिया शाह अपना बैग उठाए, चेहरे को स्कार्फ से ढके कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगी। मलाइका ये सब हैरत से देख रही थी। तभी बाबा ने खाला को पुकारा, अतिया, आज एक बार फिर तुम इसी तरह से मुंह छुपा कर जा रही हो। हिम्मत है तो इन रवैयों का सामना करो जो तुम्हारी अपनी गलती की वजह से बिगड़े हैं। खाला के हाथ से वहीं बैग गिर गया और वो चुपचाप वापस कमरे में चली गई। मलाइका शाह हैरान हो रही थी कि सुबह ही सुबह ये कौन सा फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। बाबा भी उठकर अपने कमरे में चले गए। उस रोज पहली दफा सबने अलग अलग नाश्ता किया था। मामा के चेहरे पर बहुत गहरी उदासी छाई थी। मलाइका ने मोहब्बत के साथ अपनी मामा का हाथ थामकर उनसे पूछा था कि सब खैरियत तो है ना? क्यों इतना परेशान हो रही हैं?
मुझे तो बताएं। ज़ोहरा शाह ने बेटी की तरफ देखकर कहा, बेटा, आप ही तुम्हारा रिश्ता मांग रही हैं तुम्हारे बाबा से, और वो इसी बात पर नाराज हैं। मलाइका ये बात सुनकर एकदम से हक्की बक्की रह गई और अपनी माँ से कहने लगी, मामा ये क्या कह रही हैं आप? बाबा नाराज नहीं होंगे तो और क्या होंगे? वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो मुझे कभी अब्रॉड भेज नहीं सकते। आप प्लीज आनी से माजरत कर लें और उन्हें समझाएं कि ये बात दोबारा ना करें। ज़ोहरा शाह के चेहरे पर दुख के तासुरात फैल गए। वो अपनी बेटी को हकीकत बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शायद उसे बताना जरूरी था। अभी वो उन्हें कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक अहमद शाह फोन पर तेज तेज बात करते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वो अंदाज से ही बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। ज़ोहरा शाह फिक्रमंदी से उनकी तरफ भागी थी और उन्होंने हाथ के इशारे से इन्हें मना कर दिया था। उनकी जुर्रत कैसे हुई हमारी जमीनों पर कब्जा करने की? मैं अभी पहुंच रहा हूं। तुम जब तक अपने बंदों को कहो कि मामलात को संभाल कर रखें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अहमद शाह के सामने ज्यादा टिक सके। मलाइका भी अपने बाप की ये बातें सुनकर परेशान थी। वो जानती थी कि वो गुस्से के किस कदर तेज हैं और गुस्सा करने से उनकी तबीयत कितनी खराब हो जाती है, लेकिन उसे ऐसे मामलात में बीच में बोलना उनकी रिवायात के खिलाफ था। इसलिए वो और उसकी मामा तेजी से उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मलाइका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। जुनैद शाह के बंदों ने जमीन पर कब्जे की कोशिश की है और वहां झगड़ा हो रहा है। आज तो इसकी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। ना तो उसे रिश्तों का कुछ लिहाज है और ना ही उसमें जरा सी भी गैरत रह गई है। अपना खून ही खानदान के बीच में नफरतों के बीच बो रहा है, कमजर्फ कहीं का। ज़ोहरा बेगम ने उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहा और दोनों माँ बेटी दरवाजे पर खड़ी रह गई। दिल को बहलाने के लिए दोनों ही अतिया शाह के पास जाकर बैठ गईं। बातों ही बातों में मालूम हुआ कि उनका बेटा अरहम एक डॉक्टर है और अपने मरहूम बाप का बिजनेस भी संभाल रहा है। मलाइका को यह सुनकर बहुत हंसी आई। भला जब वो डॉक्टर है तो बिजनेस कैसे संभालता होगा? शायद खाला जान पूछ कर बेटे की इतनी तारीफें कर रही हैं ताकि उसका रिश्ता करवाया जा सके। अहमद शाह को गांव गए हुए 3 दिन होने को आए थे। मलाइका बार बार सोच रही थी कि अपने बाबा को कॉल कर ले, लेकिन ये सोचकर रुक जाती थी कि न जाने वहां क्या सूरत हाल होगी। उसी वक्त घर के फोन की घंटी बजी। मुलाजमा ने फोन उठाया और थोड़ी ही देर में घबराई हुई ज़ोहरा शाह और मलाइका को आवाजें देने लगी। वो दोनों लाउंज में पहुंची तो नूरी के हाथ पैर कांप रहे थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। मलाइका ने यह देखकर फोन उसके हाथ से थाम लिया। फोन बाबा के पुराने मुलाजिम का था। वो रोते हुए कह रहा था, बीबी जी, साहब को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, आप जल्दी से नेशनल हॉस्पिटल पहुंचो, हालत बहुत खराब है, उन्हें सीधा फायर लगा है। ये सुनते ही मलाइका शाह और ज़ोहरा शाह की हालत खराब हो गई। अतिया शाह उनकी हालत देखकर उन्हें अपने साथ लेकर जल्दी से हॉस्पिटल भागी। नेशनल हॉस्पिटल में उनका पूरा खानदान मौजूद था। खानदान वाले बहुत ही गुस्से से अतिया शाह की तरफ देख रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर ने आकर बताया कि अहमद शाह की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनके पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी बीवी और बेटी से मिलना चाह रहे हैं। ज़ोहरा शाह का सदमे से हाल बुरा था, जबकि मलाइका ये सुनकर डॉक्टर पर गुस्सा हो गई और कहने लगी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप अपनी पूरी कोशिश करें ना। जब वो वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और दोनों ही अंदर पहुंच गई। उन्होंने बेटी को देखकर चंद गहरी सांसें लेना चाही और उसे अपने करीब बुलाने के लिए हाथ से इशारा किया। मलाइका रोते हुए बाप की तरफ भागी। वो उनका हाथ पकड़कर बेतहाशा चूमते हुए अपनी आंखों से लगा रही थी। बाबा, ऐसे मत करें, मुझे छोड़कर तो मत जाएं।
आप तो कहते थे हमेशा आप मेरे पास रहेंगे। आपने कहा था, देखें मैं स्टडी के लिए बाहर नहीं गई। आज आप मुझसे इतना दूर क्यों जा रहे हैं बाबा? जोरा शाह रोते हुए बेटी को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी और उसी वक्त अहमद शाह ने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली। डॉक्टर फौरन आगे बढ़े। उनके जिस्म को जोरदार झटके लगने लगे थे और उनका जिस्म बेजान हो गया था। उनका हाथ बेटी के हाथ में पकड़ा रह गया और हॉस्पिटल का वो कमरा मलाइका की चीखों से गूंज उठा। मैयत के साथ उन्हें शाह हवेली ले जाया गया। दोनों माँ बेटी जैसे सकते के आलम में थी। शाह हाउस की दीवारें कांप उठी थीं जब मलाइका ने बाप की मैयत पर गरिया किया था। सारी उम्र अहमद शाह के वालिद ने बेटे से यही शिकवा किया कि वो दूसरी शादी कर ले क्योंकि वो औलादे नरीना से महरूम है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात कही थी कि वो अपनी बीवी और बेटी को दुख नहीं दे सकते। जोहरा बेगम इद्दत में बैठी थी और अतिया शाह वापस अपने घर जा चुकी थी। हामिद शाह जो अहमद शाह से बड़े थे, उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए, जिसकी उम्र 32 साल थी, मलाइका का रिश्ता तय कर दिया और फैसला किया कि जैसे ही 40वें की रस्म होगी निकाह हो जाएगा। ये खबर दोनों माँ बेटी पर बिजली बनकर गिरी क्योंकि खानदानी हवेली में रहने का तसव्वुर ही मलाइका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और वैसे भी मुसव्विर शाह इतनी सख्त तबीयत का मालिक था जिसे सोच कर ही रूह कांप जाए। मलाइका को तो वो कभी भी पसंद नहीं था। अगर वो कभी मिलने के लिए शहर आ भी जाता तो मलाइका उसके सामने जाने से इनकार कर देती थी। मलाइका चीख चीख कर रोने लगी तो जोहरा शाह ने उसे बिल्कुल खामोश करवा दिया। वो सोच चुकी थी कि उन्हें क्या करना है। 10वें का ख़त्म बहुत बड़े पैमाने पर दिलाया जाना था और उस रोज़ सारे मर्द हवेली के अंदर मर्दान खाने में मसरूफ़ थे। जगह जगह से मेहमान आए हुए थे। जोहरा शाह ने अपने पुराने खिदमतगार कासिम को पैगाम भिजवाया था कि शहर जाते हुए उसे किसी को अपने साथ ले जाना था। मलाइका सारा दिन मेहमानों के साथ मसरूफ़ रही। पूरा दिन रो रो कर उसकी हालत ख़राब थी। जोहरा शाह ने अपनी बड़ी नंद और जेठानी को कहकर मलाइका को टाइम से कमरे में भिजवा दिया और फिर खुद उसे दूध के साथ नींद की गोली देने का कहकर उठकर उसके पीछे कमरे में चली गई। उस रोज़ कासिम की वफादारी का इम्तहान था। कासिम ने रात के पिछले पहर अपनी स्कूटर निकाली थी और अपने ख़ास मेहमान को अपने घर से लेकर चुपचाप शहर चला आया था। जोहरा शाह के बताए हुए ठिकाने पर उनकी अमानत को छोड़कर वो उन्हीं कदमों वापस गांव लौटा। उसे शहर से गांव आता देखकर रास्ते में हवेली के मुलाजमों ने पूछा कि वो सुबह सवेरे कहाँ से आ रहा है, तो उसने अपने हाथ में मौजूद दवाइयों की थैली दिखाकर कहा कि घरवाली की तबीयत रात से ख़राब है। फजर के वक्त गया था करीबी शहर दवाई लेने। वैसे भी नींद की वजह से उसकी हालत शदीद ख़राब थी क्योंकि उसने पूरा दिन साईं की हवेली में काम किया था। दूसरी तरफ सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन अब तक मलाइका के रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मलाइका की ताई ने गुस्से से दरवाजे पर दस्तक देकर उसको पुकारा और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो चाबी से दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, खाली कमरा उनका मुंह चढ़ा रहा था। पूरी हवेली में जैसे शोर मच गया। शाहों की हवेली से इस तरह कोई कैसे भाग सकता है। उसी वक्त उनकी मुलाजमा नूरा हाँपते कांपते दौड़ी चली आई। बड़ी बीबी छोटी बीबी जाए नुमाज पर बेहोश पड़ी हैं, उठ ही नहीं रही। ये सुनकर अहमद शाह की बहन और भाभी फौरन कमरे की तरफ भागी। जोहरा शाह का ठंडा वजूद जाए नुमाज पर पड़ा इस बात की गवाही दे रहा था कि उसे दुनिया से गुजरे कई घंटे हो चुके हैं। पूरी हवेली में कोहराम मच गया और साथ ही ये फिक्र भी लाहक हो गई कि मेहमानों को क्या बताया जाएगा कि जोहरा की बेटी कहाँ चली गई। हर तरफ मलाइका की तलाश खुफिया तौर पर जारी थी। दूसरी तरफ जनाजे का ऐलान किया गया तो शहर से अतिया शाह भी रोते पीटते हवेली पहुंची।
लेकिन किसी ने भी उन्हें हवेली में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी और वो कई घंटे अपनी गाड़ी में हवेली के दरवाजे पर खड़ी रोती रहीं और फिर वापस लौट गईं। मुसव्विर शाह गुस्से से पागल हो रहा था। उसने हर तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए थे, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। कासिम खुद दूसरे मुलाजमों के साथ मिलकर मलाइका को ढूंढ रहा था। वो शदीद सदमे का शिकार था। अहमद शाह ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में ही यतीम होकर उनके डेरे पर पहुंचा था। पहले साईं का जमीन के झगड़े पर कुर्बान होना और फिर आज उनकी बेगम ने भी दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में मुतमईन था कि उसने अपनी वफादारी का हक अदा कर दिया था और अब अगर उसके बदले में उसकी जान भी चली जाए तो वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। डॉक्टर ने देखकर बताया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। कलसूम शाह, जो अहमद शाह और हामिद शाह की बहन थी, उन्होंने अपने भाई को खूब मलामत की थी कि ना वो ज़बरदस्ती मलाइका का रिश्ता अपने जालिम बेटे से जोड़ते और ना ही खानदान की इज्जत यूं दाव पर लगती। रातों रात अतिया शाह अपने साथ किसी को लेकर दुबई रवाना हुई थी। इस बात को 1 महीने का अरसा गुजर चुका था जब अरहम अपने दुबई वाले फ्लैट पर पहुंचा। लाउंज में कोई बेतरतीब हुलिये के साथ मलगजे से लिबास में सो रहा था। मेकअप से आरी चेहरा और उलझे हुए बाल देखकर उसे कई घड़ियां लगी इस बात पर यकीन करने के लिए कि ये वही मलाइका शाह है जो अपने नाक पर मक्खी बैठने नहीं देती थी, लेकिन शायद यतीमी इसी को कहते हैं। उसका दिल दुख से भर गया। एकदम मलाइका को नींद में एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है और जैसे ही उसकी आंख खुली उसने अरहम को देखकर चीखना शुरू कर दिया। अरहम ने उसे चुप करवाने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया तो मलाइका ने उसके हाथ पर शिद्दत से काट कर उसे धक्का दिया और तेजी से भागती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी। वो मुसलसल चीख रही थी, खाला जान मुझे बचाएं। अरहम का दिमाग एकदम उलट चुका था। अभी तो वो पहली मुलाकात की तजलील ही नहीं भूला था कि इस लड़की ने दोबारा से वही हरकत दोहरा दी। अतिया शाह ने भांजी को गले लगाकर जब उससे पूछा कि चंदा बताओ हुआ क्या है, फिर से ख्वाब में डर गई हो, तो मलाइका ने रोते हुए उसे कहा कि वहां पर कोई है। अतिया उसे अपने साथ लेकर लाउंज में पहुंची तो अरहम बहुत खराब मूड के साथ सोफे पर बैठा था। खूनख्वार नजरों से मलाइका की तरफ देख रहा था। उसे अपनी मां के तमाम रिश्तेदारों से शदीद नफरत थी, क्योंकि जिस तरह की जबान वो उसकी मां के बारे में इस्तेमाल करते थे, अरहम का दिल चाहता था कि वो एक एक को शूट कर दे। अतिया शाह अरहम को देखकर खुश हो गई और उसे सीने से लगा लिया। मलाइका हैरत से ये मंजर देख रही थी। जब ही अतिया शाह ने पीछे मुड़कर कहा, बेटा इनसे मत डरो, ये मेरे बेटे हैं अरहम। मलाइका ने गौर से उस शख्स की तरफ देखा। ये तो वही है जिसे उस दिन अपने घर पर देखकर उसने मुलाजिम समझा था। वो हैरत से उन दोनों माँ बेटे की तरफ देख रही थी। वो अरहम की सख्त नजरों से घबराकर नीचे देखने लगी। जब अतिया शाह ने अरहम को उसके बारे में बताना शुरू किया तो उसके तासुरात कुछ नरम पड़ गए। अपनी माँ का जिक्र सुनकर मलाइका का दिल एक बार फिर से रंजीदा हुआ। वो कैसी बदनसीब बेटी थी जिसे उसकी माँ का आखिरी दीदार करने की इजाजत भी ना मिली। वो फौरन अपने कमरे में चली गई। अरहम ने संजीदगी से माँ की तरफ देखते हुए कहा, मामा ये आपकी भांजी जरूर है, लेकिन ये कहाँ से आपको मैच्योर लगती है। आप इसकी मोहब्बत में मुझे कुर्बानी का बकरा मत बनाएं। पहले इसकी स्टडी मुकम्मल करवाएं और फिर कोई अच्छा लड़का देखकर इसका निकाह कर दें। आप जानती हैं कि मेरी नेचर ऐसी नहीं है। अतिया शाह ने यह बात सुनकर गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखा और सख्ती से उसके हाथ झटक दिए। फिर ऐसा करो बेटा कि तुम भी अपने लिए कोई और मां देख लो। नेचर तो मेरी भी तुम्हारे साथ नहीं मिलती, तो इसका क्या मतलब है। तुम्हारे बाबा की और मेरी नेचर मिलती थी। हमारी उम्रों में कितना फर्क था। क्या हम एक आइडियल कपल नहीं है। उसकी मां ने मुझ पर भरोसा करके उसे मुझ तक भेजा था
اور میں تمہاری فضول سی ضد کے سامنے اس بچی کو کسی غیر کے حوالے کر دوں تو پھر اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ارحم نے یہ بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ملائکہ اپنے روم میں بیٹھی ارحم کے تاثرات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اسے تھپڑ دے مارا تھا، اور آج بھی اس کو دیکھتے ہی اس نے شور مچا دیا تھا۔ تو یہ تھا خالہ کا بیٹا۔ تو پھر اس روز وہ سڑک پر اتنی بری طرح پریشان کیوں تھا؟ اور پھر اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اور اس نے اپنا سامان دوسری گاڑی میں رکھوایا ہو۔ وہ ارحم کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما اس سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، یہ تو خود اینگری ینگ مین لگتا ہے، ملائکہ نے ڈر کر سوچا تھا۔ ارحم اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ ماما کو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم اتنا ایموشنل ڈرامہ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کو کم از کم شادی تو اپنی مرضی سے کرنی چاہیے۔ ساری زندگی کا سوال ہے، اور وہ لڑکی اتنی روڈ اور بدتمیز ہے۔ اگر شادی کے بعد وہ واپس ویسے ہی ہو گئی جیسے وہ اپنے گھر میں تھی تو اسے تو ہمیشہ سے مشرقی لڑکیاں اور فرما بردار عورتیں پسند تھیں، ورنہ وہ بزنس کے سلسلے میں کس کس ملک نہیں گھوما تھا۔ بے باک حسن تو ہر جگہ دستیاب تھا۔ اچانک ارحم کے ذہن میں ایک خیال سا لپکا اور اس کے ہونٹوں پر خود ہی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عطیہ شاہ بیٹے کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ ان دونوں کو بتا چکی تھی۔ ملائکہ نے چپ چاپ اپنی زندگی کا اختیار اپنی خالہ کو سونپ دیا تھا، کیونکہ اب ان کے سوا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ پاکستان جاتی تو غیرت کے نام پر مار دی جاتی۔ چند روز بعد سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ملائکہ کا دل بری طرح بجھ گیا کہ ارحم اس شادی پر خوش نہیں تھا۔ خالہ نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ ارحم بہت اچھا انسان ہے، مگر بس وہ کچھ جذباتی سا ہے۔ یہ بات سن کر ملائکہ نے خاموشی سے گردن جھکا دی تھی۔ ارحم نے ایک نظر بھر کر بھی اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ وہ ٹی پنک رنگ کے سادہ سے جوڑے میں سادہ سی تیار ہو کر بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں کاجل لگانے کی وجہ سے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ارحم نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے چھپ کر اس کا جائزہ لیا۔ پسند تو ماما کی اچھی ہے، لیکن اس لڑکی کو اچھا سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی یہ شاہ لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ساری عمر میرے باپ کو ان لوگوں نے گالیاں دیں اور طرح طرح کی دھمکیاں دیں۔ آج خود پر وہی وقت پڑا تو خالہ جان سے چلی گئیں۔ ارحم نے بے رحمی سے سوچا۔ اسے اب بھی یاد تھا جب بچپن میں اس کی ماں اسے لے کر ایک بار اس کے نانا کے پاس گئی تھی تاکہ ان سے معافی مانگ لے، تو نانا نے کتنی تذلیل کی تھی ان کی، ایک بار بھی ان کی بات نہیں سنی تھی۔ اور حماد یزدانی اس کے بابا ساری عمر بس یہی چاہتے رہے کہ کسی طرح عطیہ شاہ اپنوں سے واپس مل جائیں۔ ارحم نے تیز نظر ملائکہ پر ڈالی اور سخت لہجے میں کہا، سنو لڑکی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی جو تم یہ تام جھام لیے میرے انتظار کر رہی ہو۔ اٹھو، جا کر کپڑے بدلو، اور مجھے میرے بیڈ پر اکیلے سونے کی عادت ہے، اپنا انتظام کر لو۔ ملائکہ نے یہ بات سن کر حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اگر یہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہیں تھے تو خالہ نے رشتہ کیوں مانگا تھا؟ ملائکہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کاش بابا آپ مجھے اتنا جلدی چھوڑ کر نہ جاتے۔ دیکھیں آپ کے بنا میں کیا سے کیا ہو گئی ہوں۔ کل تک غصے کی تیز اور ضدی لڑکی پہلی ہی رات اپنے شوہر کی طرف سے ٹھکرائے جانے کے بعد چپ چاپ اپنی عزت نفس کی کرچیاں اٹھا کر تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ اس نے کروٹ بدلی اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ملائکہ ڈریسنگ روم میں ہی روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔
सुबह दरवाजे पर तेज दस्तक हुई तो हड़बड़ाकर उसकी नींद खुली। वो अब तक रात वाले लिबास में ही थी। अरहम की गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। जिंदा भी हो या मर गई हो, मामा 2 बार दरवाजा बजा चुकी हैं, बाहर निकलो। उसने जल्दी से चेंज किया और बाहर निकली। उसका चेहरा रात भर रोने की वजह से सुर्ख पड़ा था और आंखें शिद्दत से दुख रही थीं। उसे देखकर लम्हा भर को अरहम को अपने रवैये पर अफसोस हुआ, लेकिन फिर अरहम सर झटक कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। अतिया शाह उनके कमरे में पहुंची तो फिक्रमंदी से मलाइका की तरफ देखने लगी। बेटा तुम ठीक तो हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। शदीद सर्दी में बिना बिस्तर की रात गुजारने का नतीजा था कि वो इस वक्त तेज बुखार में मुब्तला थी। अतिया शाह ने अरहम से कहा कि वो उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाए, तो मलाइका ने इनकार कर दिया और कहा कि वो पैनाडॉल लेकर घर पर ही आराम करेगी। अरहम ने उसे घूरते हुए अपना मेडिकल बॉक्स निकालकर उसे मेडिसिन दी, उसका बीपी चेक किया और अतिया शाह उसे नाश्ता करवाने लगी तो अरहम बाहर निकल गया। मलाइका अपनी खाला के गले लगकर रोने लगी और पूछने लगी, जब ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो आपने जबरदस्ती क्यों की? और मामा ने तो बताया था कि आपने उनसे मेरा रिश्ता मांगा है। वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता लग रही थी, लेकिन उसे जब अतिया शाह ने हकीकत बताई तो उसका सर चकरा कर रह गया। दरअसल अतिया शाह उनके बाबा की मंगेतर थी। उनकी शादी तय थी, लेकिन एक रोज कॉलेज से वापसी पर उन्हें जुनैद शाह, जो उनका पुप्पोजाद था और उनसे शादी करना चाहता था, उसे अगवा करके ले गया। अतिया शाह अहमद शाह की सगी चचाजाद थी और अहमद शाह उनसे शदीद मोहब्बत करते थे। पूरे खानदान में ये बात मशहूर हो गई कि अतिया शाह जानबूझकर अपने किसी आशिक के साथ फरार हुई हैं। शादी की तारीख तय थी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी मां जोहरा को अहमद शाह से जबरदस्ती शादी करना पड़ी। जुनैद शाह ने अतिया की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उन्हें जब वापस हवेली भेजा तो किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और सारा इल्जाम उनके क्लास फेलो हमाद यजदानी पर लग गया, क्योंकि एक बार उनका रिश्ता इनके घर पहुंचा था। मलाइका की नानी ने बेटी को बड़ी मुश्किल से वहां से फरार करवाया था, वरना खानदान वाले उसकी जान लेना चाहते थे। अतिया शाह ने जब हमाद यजदानी से राब्ता किया तो उन्होंने फौरन उसे अपना नाम दे दिया और निकाह कर लिया। अहमद शाह ने भी बहुत अरसे बाद उसकी इस बात पर यकीन किया कि वो घर से फरार नहीं हुई थी, बल्कि जुनैद शाह ने उन्हें अगवा करवाया था। और तब से लेकर आज तक जुनैद शाह के साथ उनकी दुश्मनी लगी हुई थी। खाला ने बताया कि अरहम इसीलिए शाह फैमिली के हर इंसान से चिढ़ता है और साथ ही उसे यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मलाइका को अब मालूम हुआ कि उसके बाबा हर वक्त उसकी मां को ताने क्यों देते रहते थे। मलाइका को एहसास हुआ कि शायद उसने भी घर से निकलकर गलती कर दी है। क्या होता अगर वो मुसव्विर शाह से शादी कर लेती तो? जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी पुरानी खानदानी दुश्मनी की वजह से अपनी मासूम बीवी के साथ इस तरह पेश आ रहा है, तो गांव के उस बिगड़े हुए और जिद्दी शाहजादे के साथ शादी करने में क्या बुराई थी? शादी को चंद दिन गुजरे थे, उनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। जैसे ही अरहम ने वापस साउथ अफ्रीका जाना था तो खाला ने सख्ती से अरहम से कहा कि वो मलाइका को साथ लिए बिना साउथ अफ्रीका नहीं जा सकता। इस बात पर अरहम का गुस्से से बुरा हाल हो गया, लेकिन वो कभी भी अपनी मां के सामने बदतमीजी नहीं कर सकता था, इसीलिए खामोश रहा। मलाइका उसके साथ जाने से बहुत खौफजदा थी, लेकिन अतिया शाह ने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, और यूं वो उसके साथ साउथ अफ्रीका चली गई। अरहम वहां जाकर काम में मसरूफ हो गया और वो पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती थी। एक रोज मलाइका तन्हाई से तंग होकर घर से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो खो गई है, तो बुरी तरह से पछता रही थी। अरहम जब काम से वापस लौटा
तो बहुत देर में एहसास हुआ कि कमरे में खामोशी है। उसने जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मालूम हुआ कि मलाइका गुस्से में घर से कहीं गई है। अरहम उसे ढूंढने निकला और उसे थोड़ी ही दूर जाकर वो बेंच पर बैठी रोती हुई मिल गई। अरहम ने गुस्से में उसे वहां से उठाया और घर ले आया। बेडरूम में पहुंचकर अरहम उस पर गुस्से से चीखने लगा तो मलाइका भी गुस्से में फट पड़ी। नहीं रहना मुझे आप जैसे रूड इंसान के साथ। मुझे किस बात की सजा मिल रही है जब मेरी कोई गलती ही नहीं। आप जैसे नाम नेहाद पढ़े लिखे इंसान के साथ शादी करने से बेहतर था कि मैं अपने उस जंगली और आवारा कजन से ही शादी कर लेती। आपसे तो अच्छा ही होता। अरहम उसकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया और खींचकर उसे थप्पड़ दे मारा। मेरे सामने किसी गैर मर्द का नाम लेती हो, बेशरम। क्या बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ? मेरी बीवी हो, तुमने एक बार भी मुझे मनाने की या मुतवज्जो करने की कोशिश की है? आज तक वो थप्पड़ नहीं भूला हूं जो तुमने मुझे मारा था। तुम्हारे जैसी जिद्दी, घुमंडी और रूड लड़की के साथ शादी करने से तो बेहतर था कि मैं किसी से टाइम पास कर लेता। तुम्हारा सारा खानदान ही ऐसा है। और किसके लिए मरी जा रही हो? कि मैंने तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाई, तुम्हारा हक अदा नहीं किया। अगर मेरी कुर्बत के लिए इतना ही मर रही हो तो मुझे कह देती। इतनी बात सुनते ही मलाइका ने गुस्से से उसे धक्का दिया और वहां से भागने लगी तो अरहम ने उसे पकड़ना चाहा। ये देखकर वो बालकनी में जाकर छुपने लगी तो अरहम उसके पीछे ही चला आया। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा देखकर मलाइका की जान निकल रही थी। बाबा ने तो कभी उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी और ये शख्स उस पर हाथ उठा रहा था। मलाइका को लगा वो उसे फिर से मारेगा। वो बिना सोचे समझे बालकनी से कूद गई तो अरहम ने उसकी बेवकूफ़ी पर अपना सर पकड़ लिया था। वो तो शुक्र है कि नीचे स्विमिंग पूल बना था, वरना वो तो न जाने अपने साथ क्या करती। वो तेजी से भागकर नीचे पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसे तैराकी नहीं आती। वो बुरी तरह से हाथ पांव मार रही थी। कुछ देर तो अरहम गुस्से से उसे खड़ा देखता ही रहा, लेकिन जब देखा कि वो सांस नहीं ले पा रही तो फौरन पानी में कूदकर उसे बाहों में भरकर ऊपर उठा लाया। उसका सफ़ेद लिबास पानी में भीगने की वजह से उसके सरापे को नुमायां कर रहा था। वो अरहम की शर्ट को पकड़कर गहरे गहरे सांस ले रही थी। उसकी कुर्बत अरहम को पागल बना रही थी। वो उसे नजरें चुराते हुए उसके कान पर झुका और सरगोशी की। बहुत शौक है तुम्हें मरने का मेरी जान, लेकिन तुम्हारी कोशिश तो नाकाम हो गई। अब मैं मारूंगा तुम्हें तड़पा तड़पा कर। ये सुनकर वो और भी ज्यादा खौफजदा हो गई। उसे बाजुओं में उठाकर कमरे में लाया था और उसे बेदर्दी से बिस्तर पर फेंककर वो अपनी शर्ट उतारता उसकी तरफ बढ़ा तो डर के मारे मलाइका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों के दरमियान फासले कम होने लगे। मलाइका ने तकलीफ की शिद्दत से आंखें जोर से मींच ली थी। अरहम ने उसे खुद में छुपा लिया था। जब अरहम मलाइका से दूर हुआ तो मलाइका की पलकें लरज रही थी। उसने मलाइका के चेहरे पर प्यार से नजर डाली। दोनों ही इस रिश्ते की गहराइयों को महसूस कर चुके थे और कुछ देर पहले होने वाले हंगामे का असर जायल हो गया था। मलाइका ने उसको मुस्कुराता देखकर हैरत से कहा, आप तो कह रहे थे आप मुझे पसंद नहीं करते और खाला ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी। उसके लहजे में दबा दबा सा गुस्सा और शिकवा था। अरहम ने कंधे उचकाकर कहा, तो अब मैंने कौन सा कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? मामा ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तुम्हें कह तो रहा हूं मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, मगर अब बीवी हो तो बीवी वाले हकूक तो बनते हैं ना तुम्हारे, वरना फिर तुमको वो तुम्हारा कजन याद आ जाएगा कि मुझसे अच्छा था तुम उसकी बीवी बनकर रहती। वो दिल जलाने वाली बात कहकर सीधा बाथरूम में जा घुसा। मलाइका को समझ नहीं आ रहा था ये शरारत थी या फिर कुछ और। वो नहा धोकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। मलाइका को बिस्तर पर पड़े देखकर
اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، 15 منٹ میں ریڈی ہو کر نیچے ملو، جینی نے کھانا بنا لیا ہے، جب تک میں ایک ضروری فون کال کر لوں، مجھے پھر باہر بھی جانا ہے۔ ملائکہ شرمندگی سے اٹھ بیٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ عطیہ شاہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ کو ان کی نظروں سے ڈھیر شرم آ گئی۔ اس نے جھک کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دی، سدا سہاگن رہو میری بچی۔ ارحم نے سنجیدگی سے دونوں کی طرف دیکھ کر پھر ماں کو مخاطب کیا، ماما وہ تو کہہ دیں کہ دودھو نہاؤ پوتو پلو۔ عطیہ شاہ نے ہنستے ہوئے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، بے شرم کہیں کے، کیوں ستا رہے ہو بچی کو؟ ارحم ڈھیٹ بنا سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ ملائکہ دل ہی دل میں حیران تھی کہ کیسا عجیب شخص ہے۔ خالہ نے اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کی خفت کو کم کر رہی تھی۔ چند روز ساتھ گزار کر وہ لوگ ایک ساتھ پاکستان جانے کے لیے تیار تھے، اور چند دنوں میں ملائکہ کو احساس ہوا تھا کہ ارحم کتنا اچھا بیٹا اور کتنا اچھا شوہر ہے، لیکن کمرے میں آتے ہی اس کا رویہ ایک دم بدل جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ ملائکہ کے ساتھ ایگریسو موڈ رکھتا۔ اس کے کسی بھی انداز سے احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ملائکہ سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات ملائکہ کے دل کو بہت چبھتی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ ایک ہاتھ ماں کا اور ایک ہاتھ بیوی کا پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ملائکہ دل ہی دل میں خوف زدہ تھی کہ پاکستان پہنچنے پر اس کے خاندان والوں کو اگر معلوم ہو گیا کہ اس نے ارحم سے شادی کر لی ہے تو کہیں وہ لوگ مل کر ان دونوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پاکستان پہنچتے ہی ارحم بہت زیادہ مصروف ہو گیا، اور وہ دونوں خالہ بھانجی سارا دن ملائکہ کی ماں اور بابا کی باتیں کرتی رہتی۔ عطیہ شاہ جان چکی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اور وہ اس بات سے بے حد خوش تھیں۔ ارحم نے سب سے پہلے جنید شاہ کے خلاف FIR درج کروائی تھی، ملائکہ کے بابا پر جان لیوا حملے کی، اور ساتھ ہی حویلی والوں کو شو کاز نوٹس بھیجا تھا۔ احمد شاہ کی پراپرٹی میں ملائکہ شاہ کی وراثت حاصل کرنے کے لیے۔ شاہ حویلی میں یہ خبر سن کر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی کہ ملائکہ نے اپنے خالہ زاد سے شادی کر لی ہے۔ منصور شاہ اور حامد شاہ کے سینے پر جیسے سانپ لوٹ رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھے۔ اسی جائیداد کے لیے تو وہ ملائکہ سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ احمد شاہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان کو اپنی جائیداد خاندان سے باہر جانے کا کس قدر خوف ہے، اس لیے وہ سب کچھ پہلے ہی اپنی بیٹی کے نام کر چکے تھے۔ واحد ذریعہ ملائکہ تھی جو خود یہ جائیداد ان کے حوالے کر دیتی، اور ایسا زہرہ شاہ نے ہونے نہیں دیا۔ ملائکہ کے ایک رشتے کے دادا ابھی حیات تھے۔ انہوں نے حامد شاہ کو سمجھایا کہ معاملہ کورٹ سے باہر حل کر لو، کیونکہ شاہوں کی بیٹیاں عدالتوں کے چکر لگائیں یہ انہیں ہرگز منظور نہیں تھا۔ خاندان کے واحد بزرگ ہونے کے ناطے واصف شاہ کا یہ فیصلہ حامد شاہ نے قبول کر لیا، کیونکہ اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا۔ جنید شاہ کے خلاف بھی وہ خاندانی دباؤ کی وجہ سے کوئی بھی کارروائی نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ملائکہ نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے خود قدم اٹھا لیا تھا۔ جب واصف شاہ عطیہ سے ملنے ان کے گھر پہنچے تو عطیہ شاہ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے ساری حقیقت بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا مجرم جنید شاہ تھا، مگر اس وقت بھی کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اسی کی جان کے دشمن بن گئے۔ واصف شاہ نے گارنٹی لی کہ ملائکہ شاہ کو شاہ فہمی کچھ نہیں کہے گی، وہ چاہے تو اپنے خاندان سے مل سکتی ہے، لیکن ملائکہ نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے صرف اپنے ماں باپ کے قبروں پر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ واصف شاہ اسے خود اپنے ساتھ لے کر اس کے ماں باپ کی قبروں پر دعا کروانے لائے تھے۔ جنید شاہ کے خلاف ثبوت پختہ موجود تھے، اسی لیے اس کا سیاسی اثر و رسوخ بھی اسے بچا نہیں سکا۔
और बहुत जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसने जिरगा भेजने की कोशिश भी की थी, लेकिन मलाइका और अरहम अपनी बात पर डटे रहे। अरहम को अपनी मां के साथ बीते जुल्म का भी इल्म था, इसलिए वो हर हाल में जुनैद शाह को सजा दिलवाने के हक में था। कई महीनों के सब्र आजमा अदालती ट्रायल के बाद जुनैद शाह को उसके जुर्मों की सजा हो गई। हामिद शाह को खुशी थी कि उनके भाई के मुजरिम कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं। उन्होंने भतीजी को पैगाम भेजा कि हवेली के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, लेकिन मलाइका ने वापस लौटने से साफ इनकार कर दिया और शरई तौर पर जो जायदाद हामिद शाह को मिलनी थी उसके कागजात भेजकर ये साबित कर दिया कि वो एक आला ज़र्फ बाप की बेटी है। हामिद शाह ये सब देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए। मुसव्विर शाह जो हर वक्त यही जिद लगाए रखता था कि कुछ भी हो जाए वो मलाइका को नहीं छोड़ेगा, हामिद शाह ने अपने बेटे को भी समझा लिया। पिछले कई रोज से मलाइका को बुखार महसूस हो रहा था। आज भी वो सुबह को जैसे ही नमाज के लिए उठी, तिवराकर जमीन पर गिर पड़ी और शोर सुनकर जैसे ही अरहम की आंख खुली तो वो फौरन उसे उठाकर हॉस्पिटल भागा। जब डॉक्टर ने उसे खुशखबरी सुनाई तो अतिया शाह ने उसे गले से लगा लिया। अरहम पहली बार दिल से मुस्कुराया था। इस लड़की ने धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। वो उसे हर तरह से आजमा कर देख चुका था। जब मलाइका हॉस्पिटल से घर पहुंची तो दरवाजों पर फूलों से इस्तकबाल पर वो हैरत से अपने शौहर और सास की तरफ देख रही थी। लेकिन जैसे वो अपने रूम में पहुंची तो कमरा बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था और फूलों के साथ बच्चों के खिलौने रखे देखकर वो शर्मा गई थी। खाला उसे कमरे के दरवाजे पर ही छोड़कर वापस पलट गई थी। वो जानती थी कि दोनों मियाँ बीवी को इस कदर तन्हाई की जरूरत है। अरहम ने उसे बाहों में उठाकर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। मलाइका ये देखकर खुशी से रो पड़ी थी। अरहम का बदला हुआ रवैया देखकर मलाइका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही सर्द मिजाज शख्स है जो उसे मुकम्मल नजरअंदाज किए रखता था। वो उसकी कुर्बत में महक रही थी। मलाइका ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उससे पूछा, क्या वाकई में आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते? अरहम ने एकदम से संजीदा होकर कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मां को खुश रखने से बच्चा खूबसूरत पैदा होगा और सेहतमंद भी। मलाइका ये सुनते ही गुस्से से उठकर जाने लगी तो अरहम ने उसे बेइख्तियार सीने से लगाकर कहा, तुम्हें अब भी मोहब्बत पूछनी पड़ रही है? पागल, तुम्हें नजर नहीं आता? और अगर तुम्हें मेरे खामोश और संजीदा रहने से प्रॉब्लम है तो सुन लो, जब से बाबा मुझे छोड़ कर गए हैं मैं बस ऐसा ही हो गया हूं। ये तो तुम्हारा साथ है जो मैं जिंदगी की तरफ वापस लौटा हूं, और अब हमारी छोटी दुनिया जो मेरी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए मिल रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना खुश हो सकता हूं। और हमने पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल का हाल अपनी दिलरुबा बीवी को कह सुनाया। कमरे में दोनों की मधुर हंसी की आवाज गूंज रही थी। देखते ही देखते 8 माह गुजर गए। मलाइका ने तकलीफ से सुर्ख होते चेहरे के साथ बराबर में सोए हुए अरहम को जगाया। वो उसकी हालत देखकर फौरन समझ गया था। वो फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। 2 घंटे के तवील इंतजार के बाद जब डॉक्टर ने उसकी गोद में जुड़वां बच्चे लाकर दिए तो अतिया शाह ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपने बेटे और दोनों बच्चों का माथा चूम लिया। मलाइका अपने माँ बाप को याद करके बहुत ज्यादा अफसरदा थी। अरहम ने बीबी का हाथ चूमकर उसे उसके दोनों बच्चों से मिलवाया। मलाइका के चेहरे पर माँ बनने का नूर छाया हुआ था और अरहम वालिहाना नजरों से ये मंजर देख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मलाइका की ताया, ताई और पुप्पो कमरे में दाखिल हुई। अपने खानदान को देखकर मलाइका का दिल भर आया। हामिद शाह ने पूरे खुलूस से दामाद को गले लगाया था और फिर बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे मुबारकबाद देते हुए दोनों बच्चों को शगुन दिया था। और ताई और पुप्पो अतिया शाह से मिलकर आंसू बहा रही थी।
पूरा कमरा जैसे खुशियों से भर गया था और मलाइका ने मोहब्बत भरी नजरों से अपने महबूब शौहर की तरफ देखा, जिसने सब कुछ ठीक कर दिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें